adaptability on semiconductor materials, device design and application. Before commencing today's session, I would like to inform you that the feedback form and 2 quizzes with data related to yesterday's session has already been posted on the WhatsApp group. Kindly complete the feedback form and ensure timely submission of the MCQ based quizzes. So, good morning everyone. So, I feel privileged to welcome our first speaker of the day, Dr. S.K. Tomar, scientist at SSPL, to present a talk on assembly and packaging of GaN devices and circuits. Dr. Tomar holds a Master's of Science in Physics with specialization in electronics earned in 1995 from Charan Singh University, Meerut, UP. He further pursued an MTech in microelectronics from the University of Delhi South Campus in 1997 and subsequently obtained a PhD from Indian Institute of Technology, Delhi. His academic achievements are complemented by a substantial body of work with over 45 research papers published in various international and national journals and conferences. Dr. Tomar has received recognition for his contribution, including the path-breaking research, outstanding technology development awards for indigenous GaN MMIC technology development. Among his diverse accomplishments, he secured the top position in MTech batch in 1997. Notably, he received the Scientific Advisor Gold Medal for his exceptional work in designing and implementing a passive MM wave imaging system. Additionally, he earned the DRDO Defense Technology Award in 2010 for pioneering the development of 40 GHz MMIC technology. These accolades underscore his outstanding achievements and significant impact in the field. We would like to sampling to S.K. Tomar sir. Yeah, please. Yes, sir. Good morning to all of you. I have already been introduced. My name is S.K. Tomar, and I would like to know a bit about all of you. You are all faculty members. Yes. That is good for me, and I rightly brought the content. I asked the coordinator, Rakhi ma'am, is she here? Yes, sir. Okay, thank you. And she provided me an input that we are going to have faculty members. So my purpose of bringing this part of the presentation is to let you understand that how you can write a project or you can take a collaborative project with DRDO. Anybody in this hall has ever taken a project from DRDO? That is what we want to change. Because from our side, from DRDO side, we are completely open, but the field has to be like that, in which we can collaborate, right? A collaboration is something in which both the sides get advantage. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें हाँ आप ही को फायदा हो रहा है, हमें फायदा नहीं हो रहा, फिर हमारी सरकार हमारे को मना करेगी नहीं देना है प्रोजेक्ट. But if it is something mutually beneficial, if we see something that is we are going to get out of this project, then definitely we can be going ahead with the project. So there is kind of a black hole kind of a situation. If I ask you, how are you going to write a project, or how are you going to contact somebody about the project? Anybody has got any idea? No idea. So you can say it loud. There is nothing. I have an idea. You have an idea? I have filed a few projects with Critical. Okay. Yeah. So that idea should have been shared, but now I will share that idea on your behalf and Dr. Gupta's behalf.
If we share, we increase the knowledge and we increase multiple inputs, so that is always beneficial. So, as you are all aware, this is a little bit of introduction about my organization. This is how the structure is. We have a secretary and chairman DRDO. Then the finance side, you must be having the finance side, most worrisome side. आप कुछ भी electronics and communication system, missiles, armament, aeronautical, naval and material. So these are the labs, nearly 50 or more than 50 labs, which DRDO encompasses of. And out of these specific to be mentioned is GATEC. GATEC is our foundry for our gallium arsenide and gallium nitride products, and StarC is our foundry for silicon based products. So as we all know, the silicon journey started with the semiconductor journey started with silicon, and then we went to gallium arsenide, and right now we are working on gallium nitride and silicon carbide. So this is the genesis and growth of DRDO. We have more than 50 laboratories, around 5,000 scientists all over India, and around 25,000 scientific, technical supporting personnel, stores, and your security and your technical staff. All these people combine together to make or constitute a force that is delivering products of international repute, and we are going to be self-reliant in a very large way now. Especially after the kind of force that this government is giving, that there is a certain list of around 180 or 200 products which we have been told not to touch, that has to only to go to the industry. Now those products will only be manufactured, developed and researched by industry, not by DRDO. The government is saying it is not your domain. ये सब बनाना आपका काम नहीं है, ये industry को भी grow करना चाहिए. So our aim is to form a kind of a collaboration with academia, that is you, which we have the best of the brains, and research and development, R&D, that is we, and as well as the industry, where you and us together we can get our products manufactured or what do you call number produced. Because आपने कोई product बना भी लिया, आप उसको numbers में develop नहीं कर सकते, ना हम कर सकते, ना हमारा वो काम, तो वो काम industry का है. So this is a brief introduction about various directorates that we have. We are very much aware of these missile and strategic systems. We have developed this RAM rocket engine which was denied to us by US. Then we have all these missile variants. And do you know about Pinaka? Pinaka is a multi-barrel rocket launching system. So it fires around 100 or 95 rockets in a time span of around 60 seconds. And it has got a capacity and length of the rocket is around वहाँ से लेकर के इतना. So neutralizing area means वो गांव की भाषा में कैसे जहाँ पे एक भी ईंट साबुत नहीं बचेगी. So that is best explained like this. वो area is around 80 meters by 80 meters, 80 square meter के आसपास के area में it will neutralize. So it was instrumental in achieving the success or the capturing of Toroning and Tiger Heights during the Kargil war. It changed the scenario of the fight. So we have Prithvi, you are all aware of, then Dhanush, then Akash. Akash is surface to air, and another directorate that is very important is electronics. So I was in Deal Dehradun first before I was posted to SSPM. So that comes under electronics. I can share this transparency with madam. You can copy it. You will get it. And all this information which I am allowed to share is on internet also. So it is all available. Right? So this is under this category we have battlefield surveillance radar. Radar हर electronics कार में एक fascinating सी चीज लगती है. ऐसा लगता है हाँ ये कैसी चीज है जो मेरी समझ में भी आती है, मुझे अच्छी भी लगती है, क्योंकि पुलिस भी आपको रडार से पकड़ती है जब आप तेज गाड़ी चला रहे हो ना, गुस्सा भी आता है, but it is what it is. तो आपके जो हाई स्पीड कैमरा लगे हुए हैं जिससे आपकी फोटो आती है उसमें चलान भी आता है, that is also a kind of a radar, FMCW. So we have so many radars, and now my colleagues yesterday must have mentioned about C2, KU, TR chip का कुछ mention किया गया उन्होंने. So the TR मॉड्यूल है वो सब हमारे ISA के लिए बनता है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरेज फॉर हमारा जो इंडिजिनस फाइटर प्लेन है, क्या नाम है उसका,
तेजस, राइट। और उसमें Mark 2 बन रहा है अभी। Mark 2 का क्या काम करेगा, वो ट्रेनिंग के लिए भी काम आएगा। इट इज अ लाइटवेट एयरक्राफ्ट। I attended the defense aero show at Bangalore and I was literally thrilled जब वहाँ पे अमेरिकन F-16 और F-25 बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ रहे थे। जब हमारा तेजस आया तो सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इट इज मच मोर मैन्यूवरेबल, वो ज़्यादा एजाइल है, क्योंकि वो लाइट वेट है। उसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि वो इम्बैलेंस डिज़ाइन है, तो उसमें जो ऐसे ऐसे करके वो स्विल करता है ना, सो वहाँ जितने भी लोग थे मैंने देखा, सब एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड बिकॉज इट इज आवर ऑन, ये आपका अपना है। और अमेरिकन से लेकर आ रखे थे F-16, F-15, F-25, रैप्टर, है ना, रफाल, उन सबको देख के अच्छा तो लगता है, लेकिन जो अपना से लगता है वो तेजस ही लगता है कि हाँ ये हम लोगों ने कितना बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि हम लोग जब हमारे साइंटिस्टों की टीम तो ये typical हमारी भाषा है, वो साइंटिस्ट की टीम जब काम कर रही थी लॉकहीड मार्टिन में, और हम लोगों ने शक्ति 98 किया। शक्ति 98 करना भी जरूरी था। तो शक्ति 98 का अगर आप लोगों ने नाम बताया था, जब लोगों ने पोखरण में कंट्रोल्ड एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे, दैट वाज आल्सो नेसेसरी। तो उसका हम लोगों ने जब किया तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे व्हेन आवर साइंटिस्ट वेंट टू लॉकहीड मार्टिन, दे वर रिफ्यूज्ड टू बी गिवन एंट्री टू लॉकहीड मार्टिन। उन्होंने बोला कि आप अपना सामान उठाओ एंड गो बैक टू इंडिया, योर अंडर सैंक्शंस, हैवी सैंक्शंस। और SSPL specifically was under heavy sanction for a very long period of time. We paid a heavy cost for the blast that we carried out, but that they were necessary. And because of those denials, we ramped up our energy levels and we could meet the requirement. Like we developed engine for that Tejas aircraft indigenously. तो ये विदेशों की खास बात है, जब आप कोई चीज डेवलप करने के पास पहुंच जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि अब ये बना लेंगे आप, तो ये बन ही गया, तो इमीडिएटली आपको बोलेंगे अरे ये क्यों चक्कर में पड़ो, हमारे से ले लो, आपको वो करने नहीं देंगे। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन नाउ, वी आर डेवलपिंग इट एंड नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड, मस्ट हैव रेड न्यूज़पेपर्स, लॉकहीड मार्टिन इज GE, जनरल इलेक्ट्रिक इज रेडी टू कोलैबोरेट विद इंडियंस, इंडियन DRDO, इंडियन डिफेंस एंड एयरफोर्स आल्सो, कि हम लोग मिलकर इंजन बनाते, तुम कहाँ चक्कर में पड़ोगे। पर हम लोगों ने इंडिजिनस अपना इंजन बनाया है और उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। सिमिलर स्टोरी इज ट्रू फॉर आवर सेमीकंडक्टर्स आल्सो। आज की तारीख में मुझे गैलियम नाइट्राइड की कोई IC चाहिए, हमारे यहाँ बहुत लोग आए, इजरायली आए, यूरोपियंस आए, हमारे पास अमेरिकन आए, और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे को आप टेक्नोलॉजी दे दो, जो आप कर रहे हो उससे एक स्टेप पीछे की दे दो। मतलब जैसे 0.15 माइक्रोन का आप गेट लेंथ पे काम कर रहे हो, तो हमें 0.25 की दे दो। आपकी जो डिवाइसेज हैं वो 40 की गज से काम कर रही है, हमें 26 की दे दो। मतलब कहते हैं ना कि जैसे सुबह के टाइम कोई मांगने आता है, वो कहता है यार अभी तो आप लोग पराठे खाओगे, रात की रोटी मिलेगी, वो भी देने को वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं आपको कि आप हमारे से डिवाइसेज ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, वो भी किस फ्रीक्वेंसी के, कितनी पावर के, जिससे उनको वो ऑफेंड ना हो। सो अब हम लोगों ने क्या किया, SSPL में हम लोगों ने 0.15 माइक्रोन तक की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। तो अब वो फोन कर रहे हैं हमें कि आप ले लो टेक्नोलॉजी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उस रास्ते में हमें जाना नहीं है, जो अपना रास्ता है वो मुश्किल है, पर हम कुछ अचीव तो करके चल रहे हैं ना आगे। हमारे को ये कॉन्फिडेंस है कि हम उस टेक्नोलॉजी से जितने मर्जी डिवाइसेस बना सकते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हम उसको मीट कर सकते हैं। एक बार आपने खीर बनानी सीख ली है ना, आपको पता लगे खीर कैसे बनती है, तो जैसे ही आपकी खीर बनने को तैयार होगी, आपको सासू माँ आगे बोलेंगे अरे छोड़ इसे करो, कुछ ना बेटा, बैठ के मैं बनाती हूँ। तो वही सेम स्थिति है, हम सासू के लिए सुन रहे हैं, हम बना के छोड़ेंगे खीर को। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मेनली हमारा रडार्स वाला काम है। और ये हम लोगों के पास एक छोटा सा टर्मिनल है जो देहरादून में डेवलप किया है, ब्रीफ केस वाला प्लेटफॉर्म टर्मिनल। तो कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट आती है, जैसे कहीं कोई नेचुरल कैलामिटी है, कहीं पे कोई भूकंप आ गया, कोई और जैसे हरिकेन आता है, खतरनाक नाम होते हैं ना, वो आगे समुद्र में तूफान आता है, नाम उससे खतरनाक होता है, इतना खतरनाक तूफान नहीं होता। तो वो सब टाइम पे हम लोगों की एक टीम वहाँ भेजी जाती है, जो वो डिप्लॉय करते हैं सिस्टम को। जैसे 4G है, अब तो खैर बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया है, लोग अपने मोबाइल से भी बात कर लेते हैं, लेकिन अभी भी मेरे कुछ हैं जो मेरे पास 4G JCO थे, अगर वो कारगिल में पोस्टेड हैं तो वो लोगों को नीचे आने में भी 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, और वो नीचे आके ही फ़ोन कर पाते हैं, ऊपर से कोई फ़ोन का कोई संपर्क नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने ये सब उनके लिए मोबाइल में शायद फोटो नहीं है सेटरोम टर्मिनल का, तो जो हमारा ब्रीफ केस वाला सेटरोम टर्मिनल है ये हम उनको देते हैं, और उसके साथ साथ छोटा वाला टर्मिनल हम लोगों ने बनाया है डी में। तो
we have developed. Sectel is एक सीक्रेट टेलीफोन कम्युनिकेशन का है, मतलब जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको बात करनी है तो आप नॉर्मल फोन से नहीं करते। नॉर्मली आप देखोगे कि जो हमारा कोर कमांडर्स होते हैं, दे लाइक 5 or 6 कोर्स आई सपोज ऑल ओवर इंडिया, तो दे विल नेवर टॉक ओवर मोबाइल फोन, इट इज फॉरबिडन, सो दे विल ओनली यूज देयर आर्मी लाइन। सिमिलरली फॉर DRDO वी हैव टॉप ऑफिसर्स टॉकिंग ओनली ऑन सेक्टर। Then we have material engineering. Material is very important. अगर material आप नहीं बना सकते तो आप उसके बिना कुछ भी नहीं बना सकते। आपको कहने को सिंपल प्लास्टिक का दाना आप देखोगे, उस प्लास्टिक के दाने से you can make so many things and you can make it defense utilizable. Similarly, you have biodigesters. It is a very typical problem of our फौजीज। मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में आपको, जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है कि फौजी जब पहले बर्फ के ऊपर -40 -60 में वो लोग 50 में वो लोग पोस्टेड हैं, तो सुबह जो दैनिक कार्य से जरूरत होने के लिए वो लोग जाते थे और बर्फ में गड्ढा खोदते थे, वहां करके आगे बर्फ से ढक दिया। सो इट इज नेचुरल रेफ्रिजरेटर। तो आप कोई 2 महीने बाद भी जाके वहां बाई चांस खोदेगा तो वो दैट उसकी स्थिति वही मिलती है। तो फिर DRDO has given the task to develop ये सब काम करना होता है। बायोडाइजेस्टर तो इतने ठंडे वातावरण में भी ये जो बायोडाइजेस्टर है वो काम करता है एंड दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व। तो इस तरीके से हमारा मतलब ये जो एरियाज हैं ये वो एरियाज हैं जो स्पिन ऑफ कहते हैं इनको। हमने कोई चीज़ बनाई जिससे नॉर्मल जनजीवन भी प्रभावित होता है, जैसे कि हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, कोई समुद्र के किनारे कोई कैलामिटी आ गई, कोई तूफान आ गया तो वहाँ पे पानी की पीने की सुविधा खत्म हो जाती है, उस टाइम पे इमीडिएटली विल गो एंड बी एस्टेब्लिश। देन वी हैव एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, LCA अपना जो एक तो हमारा टारगेट होता है जिसके ऊपर हम लोग मिसाइल का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल की जब आप प्रैक्टिस करोगे या टारगेट प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको ये तो है नहीं कि हवाई जहाज को बोलोगे हाँ ये हवाई जहाज जा रहा है इसको उड़ा दो, तो यू नीड पैसिव टारगेट्स। तो वी हैव दिस लक्ष्य एज टारगेट। देन यू हैव आजकल बहुत फैशन में है, छोटे छोटे बच्चे उड़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन, माइक्रो, फिर नैनो, छोटे छोटे ड्रोन, फिर बड़े वाले भी आगे स्विगी कह रहा है मैं इससे पिज्जा पहुंचाऊंगा, कोई कह रहा है मैं इससे दवाई पहुंचाऊंगा। एक मैं वीडियो आया था वो लटक के ही जा रहा है उसमें, तो मतलब एक से उसका यूटिलाइजेशन है, तो ये भी हम लोग बना रहे हैं। देन वी हैव LCA as I already mentioned you, Kaveri engine is the path breaking research for development. Armaments you all know, FSA PDS. FSA PDS is a term that I learned when I joined as scientist B. It's a very typical term. It's called fin stabilized armor piercing discarding sabot. मेरे को तो याद है। तो इसका काम क्या है कि जब टैंक के चारों तरफ प्लेट लगाई जाती है एक्सप्लोसिव की, अगर आप देखोगे जो इजराइल की बात चल रही है ना उसमें भी और जो यूक्रेन वाली बात है उसमें भी टैंक का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। तो टैंक को आप 2 तरीके से मार सकते हो, इनफैक्ट 3 तरीके से। वन इज मोमेंटम की, उसकी जो चेन होती है वो तोड़ दो तो वो चल नहीं पाएगा, लेकिन उसके पास तो गन है, वो चारों तरफ घूम सकता है, घूमने के बाद फायरिंग करता रहेगा वो। दूसरा आप उसको फायर भी कर सकते हो, क्या आप उसकी जो गन है उसको तोड़ दो। तीसरा होता है टोटल किल, जो टोटली डैमेज दैट। तो जो ऊपर का हिस्सा सबसे वल्नरेबल है उसके ऊपर एक्सप्लोसिव की प्लेट लगाई जाती है, यानी कि अगर कोई आपने उसके ऊपर मिसाइल या कोई रॉकेट लॉन्चिंग किया तो जैसे ही वो प्लेट से टकराएगा तो प्लेट में एक्सप्लोसिव है, तो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करेगा तो वो जो उसका डायरेक्शन था उसको चेंज कर देगा। तो जो FSA PDS है ये इसलिए है कि इसको आप टैंक के ऊपर फायर करोगे तो वो उस एक्सप्लोसिव की प्लेट को भी पार करके टैंक को इमोबिलाइज कर देगा। जैसे आजकल आपने पढ़ा ना वो इजराइल में जो वो लोग जो बॉम्ब वगैरह डाल रहे हैं वहाँ पे हमास ने पूरी नीचे सुरंग बना रखी है, तो उन्होंने स्पेसिफिक बॉम्ब डेवलप किए हैं उसके लिए, जैसे अफगानिस्तान के लिए किया था ना जेवलिन, जो इतना ज़्यादा फोर्स के साथ जमीन में जाता है कि उसकी जो खुद का मोमेंटम होता है उससे वो जो चट्टान होती है उसको भी तोड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ जाने के बाद फिर ब्लास्ट होता है उसको। तो इसलिए जरूरत के हिसाब से सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं, हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं। तो दिस इज आर्मामेंट्स, आई जस्ट गो थ्रू, दिस इज कॉम्बैट इंजीनियरिंग, सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, लाइफ साइंसेस, वी हैव हाई एल्टीट्यूड आल्सो। किसी ने लद्दाख में गया कोई आपने से, लेह लद्दाख, तो वहाँ जाके थोड़ा आदमी को घबराहट होती है ना, ऑक्सीजन की कमी भी लगती है, उस एल्टीट्यूड पे हमारे फौजी काम करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, उससे बहुत ऊपर पे भी काम करते हैं, तो आदमी की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। मतलब
उसका जो सोचने का तरीका है, उसका जो बिहेवियर है वो पूरा चेंज हो जाता है। उसको भी स्टडी करने के लिए हमारी एक लैब है और हाई एल्टीट्यूड से हम लोग फौजियों को बुलाते हैं और उनको जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, हाउ टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, उसके लिए हम लोगों ने लैब हमारी दिल्ली में एक तो डिवास है वो इसीलिए है और एक DIPR है साइकोलॉजी पे रिसर्च करने के लिए। साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं उनके, एक मिर्च का बम भी बनाते हैं हम लोग। एक भूत जुलकिया करके एक मिर्च आती है नागालैंड में या मणिपुर साइड में, वो इतनी तेज है कि अगर आपके हाथ में लगे तो हाथ में जलन होती है। तो उसको हम लोग वो चिली का जो स्प्रे बनता है जैसे भीड़ को भगाने के लिए, वो भी उसका डेवलप किया जाता है। देन नेवल सिस्टम्स, आई जस्ट गो थ्रू these effects are added by my colleague, I don't know, ये लोग ऐसे करके आ रहे हैं, I am not aware of that. So now I will come to DRDO grants and funding program for R&D. So you guys can be a part of this program from DRDO. So what is the role of this program? This program is designed to constitute to support and promote basic and applied research. That is what you do. हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कॉलेज लेवल पे कि आप लोग कोई पाथ ब्रेकिंग रिसर्च करोगे, कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आई एम डाउटिंग यू गाइस कैपेबिलिटी, लेकिन बेसिक जो रिसर्च होती है उस पर प्राइमरीली आप लोग काम करते हो। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम इज स्टार्टेड। सो देयर हैज टू बी कोलैबोरेशन बिटवीन द academic and research institution in the area of interest of DRDO. Support activities like hosting seminar, conferences, workshops. Every other day we get so many applications from so many people. They will put the conference का जो pamphlet होता है, flyer होता है, साथ में लगा के, then पूरा डिटेल उसका आता है। तो whatever amount DRDO feels comfortable, मतलब लाख 50,000 2 लाख रुपए, it is contributed from their side. Then we ask people to organize competitions and challenging events relevant to DRDO. So who gives you this aid? So we have a directorate in the name of Extramural Research and Intellectual Property Rights, ER and IPR. It is now headquartered in Metcalf House, जो Leicester है Metcalf House, वहाँ पे इसका headquarter है। Then we have 4 boards: Naval Research Board, then Armament Research Board, Life Sciences Research Board, and Aeronautics Research Board. So we don't have a separate electronics का board as such, but if you are developing some electronics that is relevant to naval people, so you can go to naval people and ask for their collaboration. So these are the 5 funding agencies you have. So what is the procedure to get this grant in aid scheme? So you have to specify the purpose and then you have to justify the scope of complete expenditure. Remuneration, किसको आप क्या देने वाले हो? आपने तो JRF रखा है, SRF रखा है, lab assistant रखा है. Then you, what kind of equipment, infrastructural services you require, and operation and maintenance. हमको बंद करके जा रहे हैं। अच्छा। 6th block. Then what kind of travel expenses you project? जो आप नॉर्मल प्रोजेक्ट लिखते हो मेरे ख्याल से उससे अलग नहीं है। अगर आप CSIR से किसी प्रोजेक्ट लेते हो, मुझे नहीं पता आप लोग लिखते हो, तो ये सब सेम है। देन आपके ओवर एक्सपेंसेस क्या होंगे? आपको सेमिनार करने का प्लान कर रहे हो, देन वर्कशॉप specific to research project, training program. You can start a training program also on maybe circuit design, maybe layouting, or maybe VLSI integration कर सकते हो। Then इसका procedure क्या है sanction का? Procedure for sanction is you will have to go for registration. You have to register yourself. Then you go to proposal content. ये सारा automatically उस पर आता रहता है हमारे DRDO website पे। Then you have to submit your proposal. Then proposal scrutiny and review on our side. Then we approve the project and a sanction letter is issued to the PI, principal investigator. और then the funds are released stage wise. जो आपने mention किया है कि हम ये कर लेंगे तो हमें आप 5 लाख रुपए दो, फिर आप बोलोगे कि आप हमारा ये डिजाइन हो जाएगा stage 2 or you can call it milestone 2. Again you can ask for. But this was not a part of my presentation. This I specifically added for the benefit of the faculty members. So I again request you all, please pull up your socks and start writing some projects, not for us, but for yourself. क्योंकि अगर आप कोलैबोरेशन करोगे तो उसमें आप ही का फायदा है। क्योंकि DRDO में ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग कोलैबोरेट करो कि नहीं करो, लेकिन आपको डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और हमें ये थोड़ा सा हमारा स्वार्थ ये है कि क्योंकि हम लोग यहीं से
बिलोंग करते हैं, हम लोग IITs को तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, IIT को तो हम लोग बहुत फंडिंग करते हैं, पर जो हमारे कॉलेजेस हैं इनसे भी हम लोग चाहते हैं कि कोलैबोरेशन हो और आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. So that is the purpose of bringing these slides. Then all the stages are mentioned. After that you have to write a progress report and then review will take place and then project is closed with all the deliverables and technical reports as you all know. But you can do these many activities. आपको कोई research scientist भी hire करना तो आप कर सकते हो. Research associate, SRF, JRF, PA और जो standard rules हैं, मतलब जो standard norms है government के उसी हिसाब से आप उसको payment कर सकते हो. Then you can carry out preparation of reports and then you can do scientific publication. और आप equipment जो खरीदोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लैब में खरीद लिया, हमने एक पावर मीटर खरीद लेते हैं, हमें एक माइक्रोवेव का टेस्ट बेंच खरीद लेते हैं, वो हमें नहीं रखेंगे, वो आप ही के पास रहेगा, वो आप ही कह सकते हैं. तो आपको कल को जो बच्चे और पढ़ने के लिए आएंगे, दे विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट. देन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट, रीएप्रोप्रिएशन, एनहांसमेंट ऑफ फंड्स. अगर आपको लग रहा है पैसा कम था, यू कैन अगेन सबमिट प्रपोजल की इसी चीज का कीमत बढ़ गया है, मेरा पैसा बढ़ाया जाए, तो भी हो जाएगा. ठीक है, आज नहीं करोगे तो फिर उसके बाद लास्ट हो रहा है टर्मिनेशन ऑफ द. So how do you procedure for release of grants for conduct of, ये आप कैसे करते हो? क्योंकि सेमिनार तो आपके मेरे ख्याल से करवाते होगे ना, आपके सेमिनार सिम्पोजियम, उसके लिए भी I would request कि at least put an application forward to director SSPL or to ER and IPR. और complete address I can share. It is available on DRDO website also. I can also share that. तो प्रपोजल में आपका कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद सबमिशन, उसके बाद स्क्रूटनी अप्रूवल. हमारे पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात जाती है, वो देखते हैं कि ये जो आप कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो इससे हमें क्या फायदा है. उसके बाद वो देखेंगे कि इसको सैंक्शन करना है तो कितना पैसा देना है. जैसे हमारे पास पिछले दिनों कोई हम ये भी देखते हैं उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें कुछ DRDO लोग भी शामिल हैं, तो DRDO से कोई रिटायर्ड है कोई, या कोई उसमें कोई एसोसिएट प्रोफेसर या कोई DRDO से पहले कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है. उसके बाद हम लोग फिर उसका अकॉर्डिंगली विल प्रोवाइड सम अमाउंट टू यू and then you have to provide settlement. Then you have to give us free participation for 1 or 2, maybe 3 candidates also. वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है. So then you can take sanction for this also, training program for students, right? So it has to come from the students also to the concerned director, and you have to have a आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वो है 2 महीने वाला, समर ट्रेनिंग वाला, इंटर्नशिप. तो उसके लिए भी आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजो. अभी तो बच्चे आते हैं बेचारे भागते दौड़ते हैं, कुछ प्लान नहीं है, तो बेटर ये होगा कि आप उसको प्लान वे में करो. प्लान वे से मेरा मतलब है कि पहले ही बच्चों को बता दिया जाए कि वी आर गोइंग टू प्लेस यू इन दिस लैब, तो दैट विल डू सम वैल्यू एडिशन फॉर योर कॉलेज ऑल्सो. हमारा बहुत सारे बच्चे आते हैं, मतलब पर हमारा ये रहता है कि कम से कम लास्ट मोमेंट में जो आता है तो फिर यहाँ वहाँ उनको एडजस्ट करना पड़ता है. अगर टाइम भी आप करोगे तो बच्चा अपने चॉइस के हिसाब से he or she can ask for a relevant scientist and work with them. Then after that we have to prepare a training report and we award the training certificate, which is definitely useful for their future career. Now a brief introduction about our lab, that is solid state physics laboratory. It is situated in Timarpur, Lucknow Road. So if anybody goes to Delhi University, it is very much close to that. So this is our vision to be a center of excellence in research and development of solid state materials, microelectronic devices and nanotechnology for defense applications. So why material is most important, my colleague Kapil will be delivering a talk in the post-lunch session. So that will make you understand why material is important. It's like making pizza at home. तो अगर पिज्जा का बेस ही नहीं है तो पिज्जा कैसे बनेगा, है ना? तो इसीलिए वो मटेरियल बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर हमें अपना डिवाइस या कोई टेक्नोलॉजी ग्रो करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट SSPL. दिस इज ऑल द एरिया व्हिच वी हैव डेवलप्ड. आई विल बी elaborating that. So these are around 6 verticals. Apart from that, we have the futuristic vertical also. This is my area of work, gallium nitride M96, high power RF amplifier. तो optoelectronics में we are developing FPA, focal plane array measure, which is IR based. What is the advantage of developing IR FPA? IR can see under dark conditions also. तो आपको मतलब I hope you are aware of that. So that is the advantage.
Then we have mercury cadmium telluride, SW2IR. Then we have high power laser diode, blue green laser diode. Blue green laser diode is like top of the town nowadays because it is used for underwater communication. Then we have sensors. We have SAW. SAW is surface acoustic. SAW is surface acoustic low frequency devices. We develop based on that. We have developed e-Nasika. अभी around 5 days back there was an attack in parliament. वो attack तो नहीं कह सकते उसको. अब नहीं कह सकते उस time पे तो attack ही लगा था. So somebody threw those color canisters. So immediately our secretary was called from parliament. He was there. Then he called our director along with the director. His team went with that system that is based on SAW. So it is called e-Nasika. जैसे हमारी नाक को लोग नासिका कहते हैं, ऐसे वो ई-नासिका है. वो ये सुन के सेंस करके बताती है यहाँ पे कोई नर्व गैस, कोई केमिकल एजेंट तो नहीं है. तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट करके and we utilize this system. Apart from that, we have one more system that is N-Nasika, nano वाला जो नासिका है. That is also very sensitive to very small amount of presence of gas or any chemical which is hazardous to human health. Then we make these advanced materials and then cryogenics. Why cryogenics is required? क्योंकि जो आपका IR इमेजर का सेंसर है, उस IR के सेंसर को आपको ठंडा रखना होता है. दोनों तरह के एनवायरनमेंट में. अगर आपको IR बेस्ड मिसाइल बनाना है, तो आप मिसाइल जब फायर कर रहे हो और आपको उसके दौरान भी उसको सब केल्विन में ही आपको उसका टेम्परेचर को मेंटेन करना है. तो ये रिक्वायर जूल थॉमसन कूलर और यू रिक्वायर स्टर्लिंग कूलर. Then as a futuristic approach, we are working on terahertz technologies. Terahertz, आपके यहाँ से प्रोजेक्ट आया था हमारे पास. कहाँ पे लिखा हुआ terahertz वाला? हाँ. तो terahertz is now like being top of the town. Terahertz पे काफी लोग काम कर रहे हैं. एडवांटेज ये है माइक्रोवेव के मुकाबले कि अगर आप terahertz से एक इमेज को लेते हो और माइक्रोवेव से उसी इमेज को लेते हो, तो terahertz की जो इमेज है, it looks as good as your photographic image. I mean, you can't make my features out, but वो इमेज ऐसा लगता है कि हाँ ये फोटोग्राफिक इमेज है. दूसरा इट इज यूज फॉर फ्रिस्किंग. जैसे कई लोग एयरपोर्ट में जाते हैं, आपको कोई चेक करो तो आपको खराब लगता है, तो उसका ये तरीका है कि आप उसकी इमेज को कैप्चर कर सकते हैं और उसमें आपको किसी को फिजिकली फ्रिस्क करने की जरूरत है. एंड दिस क्यूबिट इज फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन. अभी आजकल आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से इंटेल ने कोई प्रोसेसर लॉन्च किया है जो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बेस्ड है. तो 16 कोर का है, 16 नाउ दे आर प्लानिंग टू गो टू नेक्स्ट लेवल. तो इसका एडवांटेज ये है कि अब 0 और 1 पे बात नहीं होगी. 0 के लिए बहुत सारी स्टेजेस होगी, 1 के लिए बहुत सारी स्टेजेस होगी. तो जब आपकी स्पीड थी वो बहुत फास्ट हो जाएगी कंप्यूटिंग की. डिसएडवांटेज ये है कि जो आपने अपने कंप्यूटर में पासवर्ड रख रखे हैं, थोड़ी देर के बाद अगर ये क्यूबिट वाला आ गया, क्वांटम कंप्यूटर आ गया, तो आपके सारे पासवर्ड ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है. तो इसलिए अमेरिका चाइना के पासवर्ड पता करने में लगा हुआ है और चाइना अमेरिका के पासवर्ड पता करने में लगा हुआ है. ये मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, आपने पता है. तो क्योंकि उसकी जो कंप्यूटेशन की स्पीड है, अभी हम लोग जो कल मेरे कुलीग ने आपको बताया हुआ आशीष ने, एक सिमुलेशन जो हम लोग करते हैं एक सर्किट का, तो उसमें हमारे को आज सिमुलेशन लगा के जाओ 3 दिन लगते हैं, जबकि वो 4 प्रोसेसर वाला वर्क स्टेशन. आप सोच रहे हो अब जब अगर यही जो प्रोसेसर है, इट विल बी लाइक मैनी फोल्ड्स फास्ट. तो आपके यही जो कंप्यूटेशन है वो फास्ट है. तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज वी हैव. सो दैट इज द, और ये हमारा जो पर्पस है इसका, हमारा इसमें एक और काम होता है जो नॉर्मल आप लोगों को मतलब नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं क्वांटम की या फिर ऑथराइजेशन की. अगर कोई भी किसी भी चीज़ को आपको लॉन्च करना है तो उसके लिए की सेंड की जाती है. तो वो की मैं भेजना चाहता हूँ टू मैडम, लेकिन वो माधु साहब के पास भी सिस्टम है, तो माधु साहब ने कुछ और की भेज दी मेरे से पहले और मैडम को पता लगा कि हाँ ये तो ठीक है. तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब हम लोग एक क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड चाहिए वो सिस्टम, क्यूबिट बेस्ड सिस्टम है, उसको इंटीग्रेट करने की सिस्टम को हम लोग कोशिश कर रहे हैं. It is in the stage of development, so that is why it is futuristic. So these are some of the products developed by us.
we have developed freehand based 40 GHz MMIC technology. तो yesterday did they talk about MMIC? बताया ना आपको MMIC क्या होता है? तो ये पूरा एक MMIC है. ये पूरा ट्रायल है. इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 तो 9 सर्किट है इसके अंदर. Similarly, this is the zoom view of hand of MESFET and this is another circuit. ये हमारा पुरानी टेक्नोलॉजी थी. ये हम लोगों ने इसके बाद हम लोग freehand पे आए. पहले MESFET था. MESFET का जो फ्रीक्वेंसी वगैरह ऑपरेशन जो करनी थी. Then we went to HEMT. HEMT you know अब तो पता याद होगा वो. कल इतनी बार बोला उन्होंने हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. आप खुद की मोबिलिटी वालों कब लगे हाई जोर से बोलना चाहिए थोड़ा सा. हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी नहीं उनको लग रहा है कि दोबारा शुरू हो जाएगा. धीरे से बोलने में फायदा नहीं है. बहुत देर हो चुकी है. मैं समझ गया. इसलिए आपको मैंने DRDO प्रोजेक्ट की बात बताई. थोड़ा सा आपके अंदर वो मोटिवेशन है. यार ये बात ठीक थी. ये बात ठीक लगी ना आपको? ये अच्छी कुछ तो ठीक लगना चाहिए. अभी देखो ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड MMIC है. पूरा MMIC का एक पूरा टाइल है. ये वेफर बोलते हैं इसको. जैसे आप एप्पल का फोन खरीदते हो तो एप्पल कटा होता है. ऐसे हमारे वेफर एक साइड से कटे होते हैं. तो ये कटा क्यों होता है? उससे तो लगेगा इसको रखना कैसे है. अलाइनमेंट के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि रखना कैसे है. अगर आपने इसको इसके बजाय ऐसे रख दिया तो 110 या 101 कौन से प्लेन में रखना था वो उल्टा काम हो जाएगा और जो कुछ बनेगा वो इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली लॉस अराउंड 28 लाख. ये हमारा एक वेफर बनने के बाद करीब 28 लाख का पड़ता है. और यही वेफर अगर हम बाहर से बनवाते हैं इट कॉस्ट अराउंड 60 लाख. तो इसके हाथ में 28 लाख रुपए की चीज. Similarly, these are optoelectronic devices. ये वाला पैकेज तो जरूर देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, है ना. नॉर्मल जो मेटलिक पैकेज होता है ना ट्रांजिस्टर वाला, SOT शायद बोलते हैं इसको. तो ये हमारा लेजर डायोड है 4 वाट का. अभी हम लोग ये TVRL चंडीगढ़ को भी दे रहे हैं उसके लिए रिमोटली किसी एक्सप्लोसिव को इग्नाइट करने के लिए. TVRL चंडीगढ़ का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है. वो हमारा जितने भी ये डेटोनेटर्स वगैरह काम है TVRL चंडीगढ़ का. इसलिए वहाँ पे किसी की एक उंगली गायब है, किसी की एक आँख गायब है, किसी का एक हाथ गायब है. वो ग्रेनेड का सब टेस्टिंग वो लोग करते हैं. Then we have this vertical laser diode stock for increasing the power levels, and this is the laser diode module with cooling facility. Then we have these sensors. As I was telling you about this SAW-based E-Nasika CWA detector. We have input from this side, and you sense the air and you analyze कि उसके अंदर कोई रिएक्टिव एजेंट तो नहीं है, कोई केमिकल तो नहीं है. तो किस किस गैस से हमें दिक्कत हो सकती है? कुछ आइडिया है? मीथेन और अभी हाँ मतलब एक्सेस लेवल पे जाएंगे तो वो नुकसानदायक. अदरवाइज ये सब गैसे जो गैसेज आप बता रहे हो तो वो है जिससे बंदा उसने ज़्यादा घी खा लिया हो तो कितनी दिक्कत होगी. कितनी दिक्कत इस गैस से होगी. दिक्कत ज़्यादा होती है जैसे साइलिन है ना. बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो आपको आप उनको स्मेल करके भी बता सकते हैं कि हाँ ये गैस है और वो आपके शरीर के लिए बेसिकली नर्व एजेंट है. तो आपको नर्व्स के लेवल पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर देती है. अभी मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जब ये स्विमिंग पूल खुले हुए थे मैं पश्चिम भारत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था. जैसे मैं स्कूटी से एंटर हुआ तो बहुत तेज बहुत पंजेंट स्मेल आई. तो हमें थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस लगा क्लोरीन कहाँ से रिलीज हो रही है. तो किसी ने बताया कि स्विमिंग पूल में जो नीचे फिल्ट्रेशन में क्लोरीन का सिलेंडर लगता है वो किसी ने गलती से खोल दिया. तो पूरे कॉम्प्लेक्स का हाल खराब हो गया विदिन 15 मिनट्स. तो ये इतना स्ट्रॉन्ग चीज है. वो तो आपको पता था. तो आपको पता है इधर ज्यादा आई तो आप नहीं जाओगे. बट ए नर्व एजेंट you will never know that it is going to harm your body. It is present there and you will simply walk in and you are going to like be unconscious and even dead. तो उसी के लिए सब डिटेक्टर्स हैं कि ये सब आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए. टाइमली डिटेक्शन हो जाए. Then we have these array sensors and acoustic sensors, and these are carbon nanotube based gas sensors. कौन से गैसेज वहाँ पे प्रेजेंट है सेंस करके पता चल जाता है. Then we have this cryo technology. As I told you, these are required for your IR based systems. PE cooler ये भी किसी भी चीज़ को इसको ऊपर रखोगे क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी लाइक है कि ये जो इसका बेस है तो
गर्म नहीं होगा, एक मेंटेन टेम्परेचर रहेगा। वो स्टर्लिंग क्रायो कूलर है, ये भी टेक्नोलॉजी हमारे को कोई नहीं दे रहा था, हम लोगों ने फिर इंडिजिनियसली डेवलप करी है विद द कोलैबोरेशन फ्रॉम इंडस्ट्री। Then these are some of the developed product in the past. So ये आइडेंटिफिकेशन है, एक वेवगाइड है, वेवगाइड के अंदर ये 1.27 by 2.54 का कट है, that means it is a waveguide for W band 75 to 110 GHz। उनको सर आपको तो पता होगा ना, ये ध्यान है वेवगाइड वाला। Then we have developed pin diodes and impact diodes, then we have coordinate detectors earlier, and this is a hugely successful project. So we gave this C-band 12 volt phase shifter to LRD Bangalore for their radars. रशिया ने हमारे को रडार तो दे दी है, लेकिन जब उसका फेस शिफ्टर खराब हो गया, नीयत मीन्स नो, उनका काम तो खत्म हो गया नीयत बोल के, लेकिन हमें तो सिस्टम को चला के रखना है। Then we had to develop indigenously, and this S-band मतलब L-band मतलब 1 to 2 GHz, S-band मतलब 2 to 4 GHz। तो इसलिए इसका साइज बड़ा, 2 to 4 GHz वाले का साइज आप देखो, एंड दिस 94 GHz वाला बहुत छोटा है। तो ये हम लोगों ने डेवलप करके उनको दिया था। Then as an educational institution, we listed these facilities which we are having with us. So if you want to get any sample characterized, आपके पास किसी चीज़ वो सैंपल है, नॉर्मली तो कॉलेज लेवल में हम लोग यही करते हैं कि हमने एक फिल्म थ्रो कर ली, उसको करेक्टराइज करना है, इसके अंदर कितने लेयर्स हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका एब्जॉर्प्शन कितना है इस फ्रीक्वेंसी पे, वो सब आपको करना है। तो वी हैव फुल फैसिलिटी, ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल। थोड़ा इसमें वेटिंग रहता है, बट यू कैन गेट इन टच विद अस, यू गेट योर सैंपल्स characterized. We have these germanium coolers, we have nano fabrication facility, we have processing, semiconductor processing facility under not only class 100 clean room, even better than that. Then we have E-beam writing tool, laser pattern generator, E-beam writing tool जो आपका गेट को लिखता है। अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी में जाना है तो आपको आपका जो गेट है उसको छोटा करते रहना है, क्योंकि नहीं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन है वो हाई नहीं जा सकते आप। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ई-बीम राइटिंग टूल। इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम होती है जो आपके सबस्ट्रेट के ऊपर इस गेट को लिखती है, ठीक है। देन वी हैव ऑल दिस these facilities are with us. Harmonic load pull, RF measurement setup, that is S parameter measurement, noise parameter measurement system and thermal measurement system। किसी सैंपल का आपको थर्मल मेजरमेंट करना है, हाई पावर पे काम कर रहे हो तो जंक्शन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसको मैनेज करने के लिए। Then these are the labs with whom and academia with whom we interact and we have collaborating projects. So this is a request from my side, choose an area of your interest and contribute to achieving self-reliance for Bharat, that is for the benefit of all of us. So this was the part for the introduction towards lab, DRDO and your interest towards the project. So I think now we can take a 5 minutes break. Yes. कुछ लोग बेहोश होने वाले तो नहीं है ना, सब ठीक हो ना? तो 5 मिनट ताजी हवा खा के है ना सर, बेटर रहेगा 5 मिनट आप ब्रेक ले लो। देन वी विल स्टार्ट विद सेकंड नाइट्राइड की लेयर, उस प्रेशर लेयर, बफर लेयर, उसके नीचे आपका सिलिकॉन कार्बाइड का मोटे वाली लेयर, तो एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बन जाती है। बनने के बाद आपने उसको फैब्रिकेट कर लिया, बहुत सारे काम उसमें करने होते हैं, मतलब थोड़ा सा फैब्रिकेशन का किसी का कोऑर्डिनेट करने वाले कहाँ गए? अच्छा, उसमें मेरे ख्याल से किसी फैब्रिकेशन वाले का भी नाम है। तो इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम फैब्रिकेशन इट विल बी वेरी गुड, बिकॉज हम लोग मटेरियल हम लोगों ने कवर कर लिया, असेंबली और पैकेजिंग आज हम लोग कवर कर रहे हैं, मटेरियल सभी कवर करेगा। मैडम इसमें कोई फैब्रिकेशन से भी आ रहा है क्या? कौन है? रुपेश टोपे है क्या? तो देखिए रॉबर्ट है सर। तो फैब्रिकेशन हमारा पार्ट भी मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है वो समझ में आने से एडवांटेज होता है कि आप उसके बारे में आप ये सोच सकते हो कि मैं इसमें कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों में से कोई आपका स्पेसिफिक फील्ड क्या है, मतलब कोई है जो आरएफ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं 5-6, तो
वो सब अलग हो। आप में से सब आप लोग भारत के सेंस से ही हो, आप तो जीटी आईआईटी से हो, आप यहीं से, तो आप लोगों से कोई काम कर रहा है RF पे या VLSI डिजाइन पे, कैडेंस डिजाइन टूल पे कोई काम कर रहा हो, कम्युनिकेशन में। ओके, तो मतलब हमारा जो रिलेवेंट फील्ड है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें आप लोग कहाँ से पिचिंग कर सकते हो। वी हैव सो मेनी नंबर ऑफ फील्ड्स कि उसमें आप थिंग्स बेटर एंड फास्टर फॉर अस। सो जब हमने वो वी हैव मेड दैट पिज़्ज़ा एंड एवरीथिंग, so now it is to be given to someone, so you cannot send a pizza to me just like that, ये लो, ये ऐसे फेंक नहीं सकते ना उसको, you'll have to pack it properly। Zomato और Swiggy से आता तो भी वो पैकेज होके आता है, so that process is called assembly and packaging। तो हमारे में जो बेयर डाई है, बेयर डाई का मतलब होता है, मैं लाया नहीं साथ में, तो मैं आपको दिखा सकता था, उसमें बहुत फ्रेजाइल होती है वो, मतलब उसकी टोटल थिकनेस 200 माइक्रोन, तो 200 माइक्रोन का होने के बाद उसके साथ साथ वो स्टैटिक सेंसिटिव भी है। स्टैटिक सेंसिटिव से क्या मतलब, हम लोग सर्दी में जो कपड़े हमने पहन रखे हैं, कई बार एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो पटाखा बजता है ना, तो बोलते हैं दूसरे को करंट मारता है, तो वो करंट क्यों मार रहा होता है, सर्दियों में क्यों मारता है वो करंट? हमारे ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि जो वेदर है वो ड्राई है, तो अगर वेदर में ह्यूमिडिटी है तो उससे वो चार्ज डिसिपेट होता रहता है। हम लोग यहाँ टच करते हैं चार्ज डिसिपेट होता रहता है, लेकिन हम लोग ड्राई वेदर में, सर्दियों में वेदर ड्राई होता है तो हम लोग कोल्ड क्रीम लगाते हैं ना, है ना, इसलिए लगाते हैं कि हम लोग ड्राई वेदर है। तो अब वो जो हमारा स्टैटिक है उसको, मेरा डिवाइस को तो मैं डैमेज कर दूंगा, क्योंकि इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वोट समटाइम्स। अगर आपने किसी प्योर वूल के कपड़े पे ऐसे ऐसे हाथ किया और आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को टच किया, तो उसका तो राम नाम सत्य है, बिल्कुल सत्य बोला, उसके बाद उसका कुछ नहीं बचेगा और आपके समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। मैं तो इसके ऊपर बायस भी नहीं की थी, अब तो बेचारा बिल्कुल ठीक ठाक था, अब इसने देखा ही नहीं, जीवन में खत्म हो गया। तो हमें वो जो बेयर डाई है वो तो बिल्कुल ही अनकवर्ड है किसी भी चीज से, उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हमारे को जरूरत पड़ती है असेंबली और पैकेजिंग। तो व्हाट इज अ पैकेज? आपने अलग अलग तरह के पैकेज देखे होंगे, मैंने लेजर डायोड वाले में जो पैकेज आपको दिखाया था, तो SO2 पैकेज बोलते हैं उसको, ट्रांजिस्टर वाला, में 3 तार नीचे निकली होती हैं, एक एमिटर, एक कलेक्टर और एक बेस। लेकिन वो जमाने चले गए, अब वो इतने छोटे, इतने बड़े एरिया में एक छोटे ट्रांजिस्टर से काम नहीं चलेगा। हमारे पास जो वेफर है या जो चिप है उसके पास जमीन हो गई कम, उसमें हमारे को ज्यादा से ज्यादा चीजों को पास लाना पड़ता है, ठीक है। तो द पैकेज सर्व्स टू इंटीग्रेट, दिस इज अ पैकेज, दिस इज अनदर टाइप ऑफ पैकेज, दिस इज मेटल सिरेमिक, दिस इज मेटल सिरेमिक फॉर डुअल ट्रांजिस्टर्स। और इसलिए काम करनी क्यों हुई है? अगर पैकेज में मैंने अपने ट्रांजिस्टर को पैक कर दिया, उसमें 3 पार्ट थे, एमिटर, बेस और कलेक्टर। हमारे केस में क्या है, हम के केस में सोर्स, गेट एंड ड्रेन। अब हमने उसको पैक कर दिया, अब हमें ये तो पता नहीं कि इसका गेट किधर गया है, ड्रेन किधर गया है, तो मैं करेक्ट कैसे करूँ? तो वो एज ए आइडेंटिफिकेशन मार्क हम इसको गेट वाला जो पिन होता है उसको थोड़ा सा काट देते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि जिधर से कटा हुआ इधर क्या है, गेट है। तो वही कनेक्शन मेरा उल्टा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मली आपका गेट कौन सा बायस होता है, रिवर्स बायस। और अगर हमने गेट से वाले ड्रेन ऑन कर दिया तो फिर से वही हो जाएगा जो हम कह रहे थे, राम नाम। तो उसको बचाने के लिए हमारे ध्यान रखना पड़ता है कि गेट को नेगेटिव बायस दे करके थोड़ा सा डिविजन चैनल बनाते हैं, फ्री फ्लो ना हो करंट का, उसके बाद हम लोग ड्रेन को ऑन करते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, it has to have it minimizes size, cost, mass and complexity, provide electrical thermal interface। जहाँ पे आपने यहाँ पे अपना MMIC या हैम्प रखा है, उसको आपको नीचे ग्राउंड प्लेन देना, ग्राउंड प्लेन देने के साथ साथ हीट जनरेट होगी। जैसे घर में आप बच्चों को पढ़ने को बोलो तो कितनी हीट जनरेट होती है, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, तो कोई भाई पढ़ ले, तो आपने उसको थर्मल मैनेजमेंट, दैट इज थर्मल मैनेजमेंट। कई बार घर में हमारे भी थर्मल मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये सब समझ लो। कई बार तापमान बढ़ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं वो मैंने देखा था तनिष्क तो बड़ा अच्छा है, वो लगा हुआ है, तो दैट इज थर्मल मैनेजमेंट। तो हाउ बेटर, हाउ गुड और हाउ नाइसली यू कैन डू इट, दैट इज योर ओन
ये पैकेज का आपका एडवांटेज है. So it will ensure the reliability of relationship, sorry, component. एक ही बात है. तो हमें इसमें what are the functions of the package? It provides mechanical support and protection. ये यहाँ पे नट बोल्ट लगाने के लिए है. ये यहाँ पे दोनों में नट बोल्ट लगाने के लिए, क्योंकि यही पैकेज आपका मॉड्यूल हमारा जो कार्टोसेट है सैटेलाइट जो हमारा इसरो ने लॉन्च किया है, उसमें हमारे हंड्रेड्स ऑफ मॉड्यूल्स हैं. कार्टोसेट जो आपका मैपिंग के लिए काम आता है, साथ साथ जो और भी जितना अब इसरो के मैक्सिमम जो सैटेलाइट जाते हैं उसमें ऐसा कोई भी सैटेलाइट नहीं होगा जिसमें डीआरडीओ के द्वारा डेवलप और हमारी जो फैब्रिकेशन फैसिलिटी है गैलियम आर्सेनाइड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर हैदराबाद में, उसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एमएमआईसीज ना लगी, तो उसको फिर हमारे को उसी हिसाब से क्वालिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज को जो आप जमीन पे भेज सकते हो, जमीन पे यूज कर सकते हो, उसको आप स्पेस में नहीं भेज सकते. यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस देयर एंड ऑन ग्राउंड यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस. सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ power and signal distribution and thermal stabilization of the device. Then what are the advantages or what is the specific thing that you require for microwaves? You have to have metal packages. ये पूरा मेटल का है, गोल्ड से कवर्ड है, गोल्ड प्लेटिंग पूरे पैकेज में होनी चाहिए. गोल्ड प्लेटिंग क्यों होनी चाहिए? एक्सेप्ट फॉर द लॉ ऑफ गोल्ड, इट इज ए नोबल मेटल, इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है. ये नहीं है कि अगर एल्यूमिनियम है तो उसके ऊपर वो व्हाइट पाउडर आ गया है ना, कॉपर है तो उसके ऊपर क्या बन जाता है, वो नीला नीला कॉपर सल्फेट बन जाता है, वो सब नहीं होगा. इट इज नोबल मेटल. ठीक है ना. आप कुछ लोग कहेंगे चांदी से क्यों नहीं कर लेते हो, तो सस्ती होती है ना, लेकिन चांदी के ऊपर भी हाँ उसके ऊपर ऑक्साइड आकर घर में रखिए ना, वो गणेश जी के मूर्ति देखो आप काली हो रखी है, बेचारी साफ कर लेना आप जाके, कृपा नहीं हो जाएगी. वो किस लिए है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम वो सिल्वर ऑक्साइड है. ठीक है. तो व्हाट इज एमसीएम? एमसीएम इज मल्टी चिप मॉड्यूल. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि इसमें क्या होता है कि हमको बहुत सारे अलग मॉड्यूल्स को हम एक ही प्लेट पे इंटीग्रेट करके हम एक सिस्टम को डिजाइन करते हैं. पहले हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट का यूज करके हम लोग एक सब सिस्टम बनाते हैं, सब सिस्टम्स को जोड़ के हम एक सिस्टम बनाते हैं. तो दैट इज हाउ द इंटीग्रेशन गोज. सो इसका एडवांटेज ये है कि इसकी मैकेनिकल रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, मेटल है तो इसलिए थर्मल डिसिपेशन बहुत अच्छा है, बाहर की कोई भी आरएफ एनर्जी इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, बिकॉज उसको ये शॉर्ट कर देगा बीइंग ए मेटल. तो ये सब इसके एडवांटेज है. अब ये जो मटेरियल है कॉपर टंगस्टन, कॉपर मॉलिब्डेनम एंड कॉपर टंगस्टन 1585, यानी कॉपर 15 और 85 टंगस्टन. So they have a good thermal conductivity and what is CTE? Coefficient of thermal expansion. कोई भी चीज गर्म होने पर कितना फैलती है. तो अगर मैं किसी चीज को ऊपर रख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये इसके ऊपर ही रहेगी, तो उसके लिए दोनों का CTE करीब मैच करना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, अगर नीचे वाले का CTE ज्यादा है और ऊपर वाले का कम है, तो मैं जब नीचे से हीट पैदा होगी तो वो क्या होगा, नीचे वाला तो फैल जाएगा और ऊपर वाला फैल नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा उसका क्रैकिंग या फिर डिफॉर्मेशन या डीलैमिनेशन, क्योंकि हम एक के ऊपर दूसरे को चिपकाएंगे ना, अभी डाई बॉन्डिंग अभी करेंगे हम लोग. तो ये सब एडवांटेजेस मटेरियल्स हैं, बड़े महंगे आते हैं, हम लोग भी खरीदते हैं ऑफिस में, इनको यूज करते हैं हम लोग. ये हमारा जो हाई पावर वाले ट्रांजिस्टर्स हैं उसके नीचे लगाने के लिए. तो एक कोवार भी आप लोगों ने सुना होगा है ना. तो ये हमारा नॉर्मली जो साइड वॉल है और जो ढक्कन है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है. अदरवाइज हम लोग इसको गैन के बेस पे यूज नहीं करते. तो ये जो बेस है इसके ऊपर RMIC चिपकाई जाएगी. यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉपर टंगस्टन, कॉपर मॉली और या फिर कॉपर टंगस्टन का 1585 का कंपोनेंट. देन यू हैव सिरेमिक पैटर्न. ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं है ना, इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है. QFL में आते हैं, यानी कि फ्लैट होते हैं बिल्कुल, इसके अंदर लीडलेस भी होते हैं, नीचे डॉट लगे होते हैं, बम्प्स बैठा उसके ऊपर चिपका दो, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है. इसके अपने एडवांटेज हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है. इसका एडवांटेज ये है कि इसका हल्का होता है, ये मेटल तो नेचुरली भारी होगा, तो ये हल्का होता है. हल्का होने के साथ साथ इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगी. व्हाट इज रेजोनेंस? हाँ, जब आपका कोई, जैसे आप अकॉस्टिक में भी देखते हैं ना, जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो रेजोनेंस होता है. जब दो लोग मिलते हैं और दोनों के
विचार मिलते हैं तो प्रसन्नता बढ़ जाती है ना? दैट इज रेजोनेंस। अगर आपके किससे विचार नहीं मिलते तो फिर आप समझ सकते हो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, फिर वहाँ बीट्स जनरेट होती है। सो मेनी पीपल कैन हियर इट, अरे बीट्स जनरेट होती है। तो अब इसका एडवांटेज क्या है कि आप क्योंकि इसको मल्टीपल लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो तो आप इसको इजीली यू कैन इंटीग्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड इट इज हर्मेटिकली सील्ड। हर्मेटिकली सील्ड का मतलब है बाहर का वातावरण अंदर ना जा सके। हवा, मॉइस्चर, तापमान, रेडिएशन ये उसके अंदर जाकर के आपका जो फंक्शनैलिटी है उसको डिस्टर्ब न कर पाए। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बिकॉज वी आर यूजिंग एलटीसीसी, आप लोगों ने कोई भी आप में से एलटीसीसी में कभी काम किया है क्या? बहुत अच्छा फील्ड है, किसी को समझ में नहीं आता तो इसमें प्रोजेक्ट आराम से मिल जाता है। एलटीसीसी या एसटीसीसी ना अभी किसी को समझ में नहीं आता। लैमिनेट लेते हैं अलग अलग, एक के ऊपर ट्रैक प्रिंट किया, एक के ऊपर आपने सर्किट प्रिंट किया, एक के ऊपर ऐसा वाला ट्रैक प्रिंट किया, सबको एक के ऊपर एक रखा, भट्टी में रखा, फायर किया, टेम्परेचर सेट होता है, साइकिलिंग का टाइम सेट होता है, उसके बाद वो इट बिकम्स ए सिंगल यूनिट। लैमिनेट्स इसलिए लिखा ना अलग अलग लैमिनेट्स, इसको हम लोगों ने क्या किया कि एक बार तो ये पेज छाप लिया, फिर दूसरे लेवल पे ये छाप लिया, फिर तीसरे के ऊपर ये बॉन्ड छाप लिए, तो ऐसे कर करके एक बार जब आप उसको हीट करते हो तो श्रिंकेज है वो अनइक्वल होती है, तो इधर से खिंच गया, इधर से छोटा हो गया, तो वो तो ठीक नहीं आएगा ना, तो दैट इज द डिसएडवांटेज। देन सिरेमिक को कभी भी मेटल में चिपकाना इतना आसान काम नहीं है, उसमें डिलैमिनेशन का खतरा रहता है। एंड यू हैव वेरी लिमिटेड चॉइस ऑफ मेटल लाइंस जो इस टेक्नोलॉजी से कंपैटिबल हो। देन यू हैव थिन फिल्म मल्टीलेयर पैकेजेस, देन यू हैव प्लास्टिक पैकेज। प्लास्टिक पैकेज का नाम आपको लगता है सस्ता होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन करना है, अगर मुझे दिवाली पे एलईडी लगानी है तो फिर मैं वो सस्ते वाले लाके लगाता हूँ ना। अगर मुझे कहीं पे पक्का डेकोरेशन करना है तो आई गो फॉर मोर रिलायबल ऑप्शन। तो प्लास्टिक का पैकेज सस्ता आता है, बहुत सस्ता आता है, लेकिन ये हर्मेटिकली सील्ड नहीं होता है, तो जो बाहर का वातावरण है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, और बाहर जो रेडिएशन का वातावरण है वो रेडिएशन ला करके इट कैन अफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ योर सर्किट। क्योंकि आपका जो सर्किट है अंदर, उसके अंदर तो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है ना, तो जो सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं उसको अगर बाहर से कोई सिग्नल आता है जो आयोनाइजिंग है, इट कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर डिवाइस। सो नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी काइंड ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। देन व्हाट आर द डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑफ पैकेज? पैकेज खुद ही इन्फ्लुएंस कर देता है आपके परफॉर्मेंस को। हम लोगों ने खुद देखा है ना, रेगुलरली हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारा थिकनेस अगर हमारी 10 मिल है हमारे सर्किट की, तो अराउंड 10 टाइम्स कम से कम उसके जो ऊपर पैकेज का ढक्कन लगाया हमने, कम से कम 10 टाइम्स उसका हाइट होना चाहिए। अदरवाइज क्या करता है, वो रेजोनेंस क्रिएट करता है। तो आपने डिजाइन किया किसी चीज को 10 गीगाहर्ट्ज के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होकर आ जाएगी 12 गीगाहर्ट्ज या फिर 8 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग, जब मैं आपको बताऊंगा आगे कि जब व्हेन वी सिमुलेट, वी कैरी आउट द पैकेज सिमुलेशन आल्सो एंड वी अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ और इल इफेक्ट्स of packaging over the performance of the circuit. So how do you select the material? You have to go and check the dielectric constant, thermal conductivity, bulk conductivity of the material, TCE, thermal coefficient of expansion, कितना फ्लैट है वो मटेरियल। हम लोग कई बार बोर्ड प्लेटिंग कराते हैं, अगर बोर्ड प्लेटिंग फ्लैट नहीं है तो हमारा जो हम उसके ऊपर डाई चिपकाते हैं वो डिलेमिनेशन और क्रैक होने का खतरा रहता है। I will show you that. So these are different types of packages as I showed you earlier. And in detail I will be showing it further. So these are the packages. The picture is not very clear. These are the packages for MCM, multi-chip module. I will show you a clear picture. So this is RF input. As you can see, this lead is cut from here. This is the gate side. This is the drain side. If you go to your basics and understand, it is a very simple thing. It is basically a power combiner. One stage, two stage. पावर कंबाइन किया, दोनों हैंड में फीड किया, बाहर से फिर से कंबाइन आउटपुट पर एक सिंगल आउटपुट आ गया, राइट। सो टिपिकल पैकेजिंग क्या स्पेक्स होती हैं? अगर आपको पैकेज खरीदना है, these many specs you have to check along with the compatibility for what kind of devices you can use. Silicon germanium, silicon carbide, gallium nitride, gallium arsenide. So temperature range उसके ऊपर specified होता है. You should understand this also. Otherwise, if you buy a package which is not compatible to your temperature level, then it will simply get damaged.
So these are, as I told you earlier, these are the normal materials which we use as the base material for gallium nitride hemp material, copper moly, copper, and again different compositions of copper moly, and then alumina. Alumina is not recommended because thermal conductivity, if you see, is just 35, and coefficient of thermal expansion is 5.4, not matching with gallium nitride. So you cannot use it. So you can use it only for like gallium arsenide, not for gallium nitride. Then there are two very important steps in the assembly. One is putting the chip into the circuit, right, into the carrier plate, and then making the top contact. ऊपर से आपको वायर माउंट करके उसको कनेक्ट भी करना होगा ना, सिर्फ नीचे से चिपकाने से तो नहीं चलेगा, उसमें सिर्फ अर्थिंग ही मिलेगी. So there are two procedures. So what are the common issues regarding device bonding? So if you don't do it properly, you will introduce excess of series resistance that actually gets counted as loss directly. Then poor reliability due to entrapment of contaminants under the bond. मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली वायर बॉन्डिंग मशीन देखी कभी इसने आप लोगों ने कभी यूज किया है. आप लोग प्लीज अपने बच्चों को लेकर आओ, हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि वायर बॉन्डिंग क्या होती है, डाई अटैच कैसे होता है. उससे प्लीज डोंट टेक अदरवाइज, पर उससे आप ना बच्चों को और कॉन्फिडेंटली, मतलब मैं नहीं कह रहा कि आपको जो पढ़ाना है या आपका सब्जेक्ट है, मे बी इट इज टोटली इररिलेवेंट, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप एक्सपीएस, एक्सआरडी है ना, और एएफएम वो सब देखोगे कि हम लोग मटेरियल को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड योर नॉलेज विल रीच न्यू हाइट्स. तो थोड़ा सा आपका मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर, मतलब थ्योरेटिकली तो आप लोग मास्टर्स हैं विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, पर प्रैक्टिकली अगर आप लोग देखोगे तो आपको और अच्छा उसमें इंटरेस्ट आएगा. सो हम लोग प्रैक्टिकली एक्चुअली फेस करते हैं. जैसे अगर आपने वायर बॉन्ड कहीं पे करना था, गोल्ड सरफेस भी है, अगर आपने उसको क्लीन नहीं किया, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस या ऑयल था जो हाथ से टच होने तो आ ही सकता है, वो बॉन्ड लगेगा ही नहीं और आपको दिखाई देगा कि बॉन्ड लग गया. लेकिन जब आप उसको टेस्ट करने के लिए जाओगे तो उसके अंदर आपको करंट ही नहीं मिलेगा. फिर आपको पूरा रिवर्स जाकर के देखना पड़ता है कि ये तो मेरा ड्राई बॉन्ड है. So if it is a improper bedding, that's what I am saying. So it will not be connected to the ground plane, usually caused by inadequate cleanliness. थोड़ा सा भी हाथ टच हो गया. तो this is a procedure for die attachment. Die is the chip. जो सेमीकंडक्टर डाई है उसको हम लोग कैरियर पे कैसे कनेक्ट करते हैं. This is MIC. This is die attached material. This is the package base जो मैंने आपको दिखाया था. तो इसके लिए हम लोग मटेरियल जो यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड में तो हम लोग यूज करते थे इपॉक्सी. तो इपॉक्सी में क्या होता था, इट इज बेसिकली रेजिन और साथ में होती है उसके अंदर सिल्वर फ्लेक्स, क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा जनरेट नहीं होती, उससे काम चल जाता था. बट अब इसमें ऐसा नहीं है. इसमें your जंक्शन टेम्परेचर इज रीचिंग टू 200 to 225 डिग्री सेंटीग्रेड. तो उसको अगर आपने जल्दी से डिसिपेट नहीं किया तो ये डिवाइस विल गेट डैमेज, ब्रेक डाउन हो जाता है. तो उसको हम लोगों ने क्या किया, हम जल्दी उसको डिसिपेट करने के लिए नीड 80% गोल्ड एंड 20% टिन. तो व्हाई इट इज यूटेक्टिक, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है. जब हम इसको अगर आप देखोगे तो टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है और जो गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत हाई है. लेकिन जब इस कंपोजिशन में इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है तो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो 180-200 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, रफली नियर दैट. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूटेक्टिक एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद जीरो वॉइड्स एंड मैक्सिमम, बिकॉज इट इज मेटल, गोल्ड टिन दोनों ही आपका इस तरीके से तो कंडक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी आती है. So advantage is low temperature processing because of eutectic nature. The temperature comes down, assembly becomes easier क्योंकि वो solid होता है, solid gold होता है. It's like छोटा सा पीस काट के अगर आपका 1 mm by 1 mm का डाई है तो आप जो शोल्डर है या इसको हम लोग शोल्डर ही बोलते हैं, उसका साइज लोगे 0.9 by 0.9, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शोल्डर ज़्यादा ले लिया और जो आपका चिप था वो छोटा है और वो मेल्ट होकर के आपके डाई के ऊपर आ जाए, तो इट विल लीड टू शॉर्टिंग ऑफ द डाई. Sir, what is conductive epoxy? What is conductive epoxy? This is the resin FR4. हाँ वही, नहीं उसमें रेजिन प्लस सिल्वर फ्लेक्स या सिल्वर पेस्ट, ये दो तरह के कंपोनेंट से मिलता है.
that is compatible only with gallium arsenide, as I just told. For gallium nitride, it is of no use because the thermal conductivity is very poor compared to gold. उसके लिए now they have different kind of epoxy that is called emeristic, वो recommended है. So उसके अंदर क्या है, जो silver flakes है, उसका जो quantity है is much higher. So more and more metal you have, better and better thermal conductivity will be. So this is how we mount the devices. This is our chip and this is our MIC का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ हमारा ground plane होता है, and you have these board wires. This is called top connection, which I will cover later on, and this is die attach material over this base. Then you have these higher VRs for faster heat dissipation. This is substrate. Then another way is to mount this die attach material over a heat spreader. That may be copper moly copper का एक block, जिससे जो आपका heat dissipation है, इससे भी fast हो जाएगा ऊपर वाले से. So this is called cavity mounting and that is called conventional mounting. इस केस में क्या किया आपने, लेफ्ट और राइट में जो आपका सबस्ट्रेट था उसको कट करके आपने हीट स्प्रेडर रख के इसको आप सीधा यहाँ ले आए, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन था that becomes even faster than the earlier case. Now there are, as I was telling you, these are silver flakes, right? And this is complete epoxy. So this is perfectly arranged, but in this case you have these voids. So what will happen when you cure it, when you heat it, what will happen? You will have areas of localized heating and this die will get damaged. That is why you have to apply a uniform layer of this epoxy in the case of gallium arsenide and molding uniform in the case of gallium nitride. Then if it is a good bond, there is going to be a very thin layer of epoxy, and then if it is tilted like this, as I was telling you, the epoxy from this side will come to the top of the MIC and it will be damaged. Then if it is a cracked die, unacceptable. If the metallization is missing, then how will you provide the contact if the metallization is not there? So that also is not acceptable, and broken die is also not acceptable. So this is the machine we use for handling these device dies. We don't handle them with bare hands. If we handle them with bare hands, they will get damaged and they are not exposed to the environment. So this machine, we have to put our hands inside and handle those MICs inside this environment, this inert environment. It is this environment is having flow of nitrogen inside it. Then if we talk of high power GaN MIC packaging, as yesterday my colleague must have told you that they have designed like 30 watt, 40 watt, even 1 kilowatt का हम लोगों ने power amplifier बनाया है. तो उसका assembly, how do we do the assembly of that particular high frequency and high power system? So these are called multi-chip module package. This area will accommodate one pack NCM. This will also accommodate one MMIC. All these areas will accommodate one MMIC each with a metallic wall in between. So when you have metallic wall in between, there will be no crosstalk. So signal integrity will be maintained. Similarly, it is another view of the same package. You can see these blue and green. If it is blue or green, it means it's the LTCC package, low temperature co-fired ceramics. And this is how perfectly precision die attachment machine works. So this is that we have it with the Greater Hyderabad. Again, the integration how it takes place. Because if you have to pick up that particular die, you don't have to, you can't pick it up with your bare hands. You have to use a vacuum collet, or you have to use ceramic tweezers for, these are the precautions for a strong and acceptable die attach. So you have to use electrically and thermally conducting epoxy. Yeah, it should be, surface should be clean and flat. So this is that another epoxy that I was telling. This is recommended. Epotec S20 for gallium arsenide or Emeristic 2.15A for gallium nitride. So this has got much better thermal conductivity. So where you are going to bake your assembled carrier plate along with your MMIC, it has to be having a clean environment. ऐसा नहीं है कि उसमें किसी ने कोई प्रोसेस किया और उसमें डिगैसिंग हो गया, वो गैस अभी उसमें है, आपने ले जाके अपना MMIC रख दिया, तो it will get contaminated.
That is how. सेल्फ लाइफ तो सुना हूँ, व्हाट इज पॉट लाइफ? Pardon me? सेल्फ एंड पॉट लाइफ आपने दिखा ना अभी? सेल्फ लाइफ तो सुना हूँ, लेकिन पॉट लाइफ क्या है पता नहीं इसमें। Pot life, you can say when it is, shelf is somewhere when you can actually maintaining a nitrogen in that environment. We have those shelves where we have flow of nitrogen and we have temperature and humidity all controlled there. But pot is not that. It's like something you have taken out for integration and how long you are going to keep it there and it remains usable. That is what is called basically pot life. So shelf life में तो it is not a problem, it will be long life because you have specifically designed and assembled shelves जहाँ पे nitrogen का flow होता है. But pot is like much more vulnerable to the environmental conditions. Then wire bonding. Wire bonding is utilized for providing the top connection. So we use a gold wire for like thicknesses, or the diameter is like 1 mil or 1 milli-inch. So there are different types of wire bondings, ball bonding, wedge bonding, and you use, अगर सस्ता काम करना है तो you can use aluminum wire. Like silicon में पहले लोग क्या करते थे, जो शुरू में PCBs थे, people used to buy it, break it, melt the gold out of it, and they became very rich. फिर बाद में चाइना वालों को पता लग गया, उन्होंने क्या किया, यार लोग बहुत तेज निकले इंडिया वाले, हमारी पूरा PCB तोड़ के इसमें सोना निकाल लिया. उन्होंने जो अपने वायर बॉन्डिंग थी वो एल्यूमिनियम जो शुरू कर दी. तो मतलब उसमें सस्ता काम है, आपको स्ट्रेंथ इज लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज बिकॉज यूर इज फुल्ली पैकेज. सो उसके अंदर आप क्या बॉन्डिंग करते हो रिजल्ट डजंट मैटर. तो यू कैन यूज गोल्ड वायर और एज वेल एज एल्यूमिनियम वायर because the purpose of that wire is only to provide a electrical connection. But yes, if it is exposed to external environment, it will definitely get damaged because of oxidation and things like that. So, what ball bonding is, first of all, your capillary tube का जो last edge है that will heated, you will push your gold wire, melt होकर के it will take the form of a ball. Then आप उस बॉल को सबसे पहले जाकर के जो आपका चिप है उसके ऊपर टच करोगे. टच करने के बाद what is the advantage of putting or using the ball bending? Now it is a ball and you are taking the wire out of it. You can go to any direction. But if it is wedge bonding, ऐसे मैंने लगाया तो I can only go in the same direction. तो यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड. बॉल बॉन्डिंग का ये एडवांटेज है कि if I put a ball here, then I can go to any direction 360 degrees, right? So लास्ट में जाकर के आपको उसको wedge की तरह एंड करना पड़ेगा क्योंकि आपको उस बॉन्ड वायर को काटना भी है ना, तभी तो आपका बॉन्ड खत्म होगा. Then second way of bonding is wedge bonding. In wedge bonding, as I told you, it's like stitching. So normally 90% of electronic chips are now bonded using ball bonding technique because of the flexibility. You can go forward, you can take your bonder backwards. Otherwise, wedge bonding में क्या है, इधर bond किया तो आपको next direction में आगे जाना पड़ेगा. Then what are the different types of bonding in these two bondings also? Thermocompression, that means आप उसको heat भी provide कर रहे हो, as well as उसको compress भी कर रहे हो. Then ultrasonic bonding and thermosonic, heat as well as ultrasonic. It is a combination of all three. So thermosonic bonding is the preferred method for gallium nitride devices. So you have wire material that is gold, aluminum or copper. Then there is one more bonding that is very popular nowadays and it utilized. It's called flip chip bonding. तो इसमें हम क्या करते हैं, जिस चिप को आपको बॉन्ड करना है, जहाँ जहाँ बॉन्ड करना है, वहाँ पे गोल्ड के बम्प्स बना देते हैं. तो बम्प्स बना करके हमने क्या किया, जिसके ऊपर आपको बॉन्ड करना था वो उसके ऊपर आकर के उल्टा करके अटैच करके हम लोग बॉन्ड कर देते हैं. एडवांटेज क्या हुआ कि जो आपका वायर बॉन्ड का डिस्टेंस था वो खत्म हो गया. तो जब अगर वायर बॉन्ड है, वायर बॉन्ड इज मेड अप ऑफ मेटल, इट विल डेफिनेटली ऐड इंडक्टेंस वैल्यू. तो इंडक्टेंस इज नथिंग बट ए लॉस टू योर सर्किट. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ flip chip bonding. So you have solder bumps, plated bump and stud bumps. They are required. We are using this technology for our IR FP क्योंकि उसमें around 1048 bumps हम लोग create करते हैं और उसके ऊपर हम लोग फिर उसका flip chip bonding करते हैं. Then how do you handle the bare die? As I was telling you, you cannot just pick up a bare die and take it home. घर में घूम फिर के सुबह आकर अच्छा आज मैं इसको बॉन्ड कर लेता हूँ. No, you cannot do it. It will be instantly damaged.
So you have to use a vacuum collet to pick up and place it. Then you have handheld, we have it in our lab. If you visit, I will show it to you. Vacuum pencil, you press it, the vacuum is generated, put it on the MMIC, it will remain hold. Then you place wherever you want to place it. Then you use alcohol moisture Q-tips. And wooden, कई लोग हमारे गेटक वाले इतने एक्सपर्ट हैं, वो कुछ नहीं करते, वो टूथपिक रखते हैं. वो टूथपिक को ऐसे ऐसे पहना किया, टच किया, हम नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो लोग they are like that's a fabrication facility, assembly, professional assembly facility. So they assemble like hundreds of circuit in a day. So if we try it, we will not be able to do it. But their expertise and skill level development happens only when you practice more and more. So they use simple wooden जो हमारा होता है toothpick, उससे वो लोग करते हैं. But recommended is vacuum collet, right? So anything it comes in contact with your device, it is going to damage it. Any contamination, any form, if you get in touch with your device, it will damage it. Now, after we made the package, हमने assembly कर भी लिया, package ले भी लिया, and then हमने उसके अंदर integration भी कर लिया. What we find out that the performance has changed जो हमारा device का था. तो उसलिए we have package simulation tools. और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं लाइक क्योसेरा, ट्राइडेंट, ट्राइक्विंट, ये सब क्या करते हैं, पैकेज के साथ आपको पैकेज का मॉडल भी देते हैं. यू कॉल दैट मॉडल इनसाइड योर 3D सिमुलेटर एंड प्लेस योर MMIC और इक्विवेलेंट मेटल ब्लॉक इनसाइड दैट एंड यू पुट ए इक्विवेलेंट RF सोर्स. देन यू सिमुलेट कि मेरा जो सर्किट था उसकी परफॉर्मेंस में कुछ चेंज तो नहीं आने वाला. सो दैट इज अ बिग एडवांटेज. सो यू कैन नलिफाई द पैरासिटिक इफेक्ट इन म्यूचुअल कपलिंग. And you have all package 3D models, companies provide that model. You can actually design your own package and your own model also. People are doing that also. So then you do thermal analysis. अगर मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन करूँगा, ऐसा तो नहीं है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए कि मेरा पैकेज उसको हैंडल ना कर पाए. So you do all those thermal simulations beforehand, before carrying out assembly. So now if you do the assembly, you will understand this is the hotspot because this is where the channel is. A channel is where the electron flow is taking place. So it is going to be the hottest area on the chip. तो इसी heat को हमें जल्दी से जल्दी dissipate करना है. That is the sole purpose. इसलिए हम लोग ये सब जो high power का system होता है उसमें copper का thermal conductivity अच्छा होता है, तो copper का heat spreader लगाया जाता है. So again आप लोगों ने वो भी पढ़ा होगा. इसमें एक चीज और बता देता हूँ मैं. आप लोगों ने कई बार घर में कंप्यूटर खरीदते हैं ना, उस पर लिखा होता है ROHS compliant. तो सोचते हैं ये क्या फैक्ट है. तो वो बेसिकली इज रिडक्शन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस, यानी कि उसमें कैडमियम, लेड, ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं हुई हैं आपके पैकेज में. उसका मतलब ये होता है if it is written you have to be sensitive before touching this particular surface because it is electrostatic sensitive. So these are classified as American DOD standard 1886. So you have to use anti-static storage trays and boxes, ground mat at all workstations, ground straps. We have to wear ground straps before you touch. Then static eliminators of compressed gas nozzles. Static eliminator ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग चल रहे हैं, अगर हमारे जूतों में एक कील लग जाए तो हमारा स्टैटिक सब ग्राउंड होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हवाई जहाज तो हवा में चलता है, तो उसमें हमारा जो स्टैटिक जनरेट होता है उसको हम लोग ग्राउंड कैसे करते हैं. तो दिस इज फूड फॉर थॉट. आज आप सोचना घर में जाकर बच्चों से पूछना कि हवाई जहाज में हम लोग स्टैटिक को डिसिपेट कैसे करते हैं. यहाँ तो आप ग्राउंड कर दोगे ना, तो हवाई जहाज में तो ग्राउंड है. उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कर लिए, दोनों बॉन्डिंग लगा दीजिए बस उसमें. और सरफेस जाके पूछना आप. सर मैंने तो जहाज में काम किया ना, उसमें क्या होता सर, जब हवाई जहाज चलता था तो ड्यू टू दैट एयर फ्रिक्शन बहुत एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज जनरेटेड. सो उसमें हम एक सरफेस से दूसरे सरफेस में अगर जंप नहीं हो जाए, इसीलिए बॉन्डिंग मेटल बॉन्डिंग में लगा देते थे, सो दैट ऑल बॉडी विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो वो तो आपने फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट दैट इज स्टिल ऑन द सरफेस. हाँ, जब एयरक्राफ्ट ज़्यादा था ऊपर से, ऐसे नहीं ग्राउंड में तो नहीं. ग्राउंड में ऑटोमेटिकली हम एक चेन लगा के उसको ग्राउंड कर देंगे. जब ऊपर हम लोग करते हैं, आपने देखा होगा जो एयरप्लेन का विंग्स होता है ना, विंग्स में वो बहुत फाइन मेटल का सर्कल लगा होता है,
call it, pencil shape का. तो वो basically static dissipator है. Edge पे आने के बाद the static will come in touch with the air and it will get dissipated. चारों तरफ लगा होता है वो fins में भी जब ऐसे एयरक्राफ्ट का fin है तो इस जगह भी लगा होता है, पीछे भी लगा होता है, आगे भी लगा होता है. If you have any questions, thank you for patient hearing and Sir, any precaution you are taking of EMI and EMC? any. EMI and EMC? That is why we are using metallic packages. Suppose you are using two transmission line for giving a connection to your circuits, जैसे आपने पिक्चर में दिखाया था बहुत सारा, so उसमें अगर EMI होता है तो how you stop that EMI? When we are using two transmitter for providing signal to our circuit, in that case our purpose is to provide both the signals, right? So we don't need an EMI EMC safety there. We need an EMI EMC safety where we have to protect our circuit from any stray radiation, which is not wanted by me. So for that, what we do, we are using metallic packages. Inside metallic packages, any radiation from outside cannot interfere. But That is on the purpose. PCB itself, if there is two track are there nearby, there may be chances of the radiation, stray radiation That between is- those that two. is what is called crosstalk. That is why we are using metal lids or metal walls. For packaging, I will show it to you. We have that is why we have these metal walls. So one circuit cannot cross talk with other circuit. This is what is taking care of your EMI INC. These metal balls. These metal balls. So each circuit is a complete identity by itself, not interfering with any other. Sir, you have told that there are some package simulation softwares also. So that is a part of testing of a chip basically. That is a Those packages can be used for so many things. CST, Micro Studio, HFSS. HMSS. You can use them for designing your packages, for simulation of the So packages. sir, this simulation is done for only the first batch of IC. अगर बाद में later on we find out कि हमारा जो complete volume निकला है उस सब में ये problem है, तो how can we rectify that? Once you analyze the complete process, then you don't have to do this for all the devices. But initially, as you said, you rightly said that you have to carry out all these simulations for first batch of your First circuit. batch. Once you have certified that yes, this circuit performance is not being affected by this particular package, then you go ahead with all the assembly, there is no problem. And you use these packages tools and you are provided with, if I am buying a package from Kyocera, that is a company from Korea, so and Japan, so if I am buying a package from Kyocera, they will provide me the model for that particular package beforehand. So I simulate my circuit along with that package. So it is taken care that my package is not going to interfere in the performance of my circuit. Okay, before buying from Coursera, we first simulated. If it is okay, then we'll buy. Yes, they will provide you model. Model आप download भी कर सकते हो, online भी download कर सकते हो. Thank you. Signature. Can you go left for Sir, for signature? generously imparting your extensive knowledge on technological advancement, products developed and facility offered by DRDO, assembly and packaging of gallium nitride devices and circuits. Your word of wisdom has been invaluable and we appreciate the insight you have delivered to us. Now I request Ms. Abhilasha Bukhe ma'am to kindly present a memento to sir. अभी प्रोफेशनल प्रोग्राम आ रहा है. मैं उनको बुलाती हूँ। नहीं आप ही प्रोफेशनल हो. I request all the faculty members and participants to kindly assemble for lunch at 1 p.m. in room number 416.
and we will resume the next session from 2 p.m. In the same time. Thank you. in the same room.